الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف अक़ायद आलम में मुजस्सम शाह आदम बनी आदम हमारे प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जिसने उस पर एक बार दुरूद पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ा व जल उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिल्लाह। जन्नत is the ultimately greatest ni'mat of Allah Subhanahu और जन्नत हासिल करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। We must work hard so we can attain Jannah in the hereafter. But Jannat is made not for everyone. Jannat is made for the believers, those who do the good deeds. यानी believer होना तो पहली condition है, and secondly अच्छे अमल भी करें। If पहली क्वालिटी में फेल हो गया, is not a believer, then good deeds give no benefit. फिर अच्छे अमल का कोई फायदा नहीं। ये दोनों एक साथ चलते हैं। जहाँ भी देख लो अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, you will always find these two words together. Those who believed and did the good deeds. तो जैसे वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू, ऐ हबीब खुशखबरी दे दो जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात और नेक अमल किए, अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, for them is paradise beneath which the rivers flow. तो अब यहाँ बात जन्नत की हो रही है कि जन्नत मिलेगी, किसको मिलेगी? जो ईमान लाया और नेक अमल किया। हज़रत वहब बिन मुनब्बे, somebody asked him, is the kalima not the key of Jannat? Kalima means La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. क्या कलमा जन्नत की चाबी नहीं है? He said, why not? But remember, with every key there are teeth. हर चाबी के दांत होते हैं, दंदाने. And without that you cannot open the lock. So he gave very beautiful example that yes, no doubt kalima is key for Jannat,
And namaz, roza, hajj, zakat are the teeth of that key. Now we're talking about entry into jannat. तो चाबी तो है, दंदाने नहीं है तो ताला कैसे खुलेगा? तो उसके दंदाने नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये करने पड़े. So if you want to open the lock of Jannat, we have to perform our salat. We have to fast. And if roza is first, then we have to keep fast. And if hajj is first, then we have to go for hajj. If we have wealth and conditions are fulfilled, like 1 year is passed on the nisab, then we have to pay zakat and other faizan wajibat. So all these are regarded as the teeth of that key. So it's a package. So you must have them together, iman and amale saleh, good deeds. Then definitely there is jannat for that person. Now, in today's pre-khutbah talk, I want to talk more about jannat, to describe jannat. How good the jannat is, how beautiful the jannat is, how comfortable the jannat is. So we can develop some desire and greed to get to the jannat. लेकिन जन्नत के लिए वो अमाल करने पड़ेंगे जन्नतियों वाले. Hazrat Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala says that we said in the beloved quote of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, mimma khuliqal khalqu, referring to Jannat, Ya Rasulullah, with what Jannat was created. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied, with water. You understand how important water is? Let alone everything of dunya, even Jannat is created with water. So must respect water, value water, don't waste water. And if you drink a lot of water, it keeps you healthy. And then Sahaba Ikram asked, Ya Rasulullah, give us news about the building of Jannat. The palaces that are built in the Jannat, the houses that are in the Jannat, please describe to us. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, one brick in the palace of Jannah is of gold and one brick is of silver. And it's daga, we call it daga, that they mix to build, is made of musk. And its soil is made of za'faran. And its pebbles are made of pearls and rubies. And whoever will enter Jannat, he will always be happy. He'll never be disappointed. He will stay in Jannat forever. He will never die. His clothes will never become old or dirty.
and his youth age will never come to an end. He'll be a young man or a young woman. बुढ़ापा नहीं आएगा. And how big the jannat is. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said that there's one tree in Jannat and its shadow is so wide that if a person riding the horse keep traveling for 100 years, the shadow of that tree will not come to an end. 100 साल तेज घोड़े पे सवार होकर चलता ही रहे दिन रात. It's just one tree. So you can imagine rest of the property and the gardens and the places that are in paradise. In Jannat there are such bounties, such ni'mat that no eyes have ever seen before, no ear has ever heard before, and no mind has ever visualized about it before. Because we can only visualize something which we can imagine. But the ni'mats of Jannat are beyond imagination. See all these examples that are given, gold, silver, pearls, rubies, musk, saffron, this, that. They are just to explain so our minds can comprehend little bit. But that's not exactly what Jannat is. Because what other example can be given according to the limitations of our knowledge and our vocabulary and our understanding? Just for us to understand and appreciate that how great and beautiful. In fact, the reality of Jannat, we will only know when we are in Jannat. Before that, you can write books upon books. And you can read each and everything with full understanding. It's still not a proper description of Jannah. So therefore, one should work hard towards Jannah. It's mentioned in Hadith Mubarakah that a place, a ground in Jannah equal to the size of a stick. Stick that normally people use when they walk or they use it for their animals. That size stick. It's thin, maybe meter, 2 meter, that's it. So it's mentioned in Hadith Mubarakah that a land, a place in Jannah equal to the size of a stick is greater than the whole dunya and whatever is in the dunya. अब इतनी सी प्रॉपर्टी जन्नत में मिल जाए तो क्या कहें? Now imagine people snatch each other's properties. लोगों की प्रॉपर्टियां खप खाते. A lot of brothers, they don't give the inheritance to their sisters. Now कहते हैं हमारा कल्चर है, बस प्रॉपर्टी जो है ना बेटों को मिलती है, बेटियों को नहीं मिलती. I was in Pakistan. I came back 2 days ago, and in my own family, I was shocked to hear that people are so ignorant. That father died and the sons, they got hold of the properties and sisters got nothing. I tried my level best to explain them. May Allah change their hearts, but this is what exactly is happening. That's a reality.
ये दुनिया की सारी दुनिया और उसमें जो कुछ है एक स्टिक के बराबर जो जमीन है जन्नत में, उसके बराबर भी नहीं. So you want to leave Jannat for this temporary property? धोखा देकर, जबरदस्ती करके, बहनों का हक मार के. जन्नतियों को कोई ट्रबल नहीं होगी, किसी काम के लिए उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. They would not do any hard work to achieve anything. For example, if Jannati is lying in the Jannat, no, lying, not sitting, and he feels like eating apple, or he feels like eating grapes, the tree, the branches of that tree of fruit will come down to the level that while he is lying down he can break. उसको इतनी भी तकलीफ नहीं देनी है कि उठ के जाके तोड़े. And if he is sitting and he desires that I want to eat some fruit, so the branches of fruit tree will come to the level of his height, so he can easily break fruit with his hand and start eating. Now see, uski position change hui na. He was lying and now he's sitting, and then if he is standing, then again the fruits will reach to his level. यानी जन्नत में बंदे को इतनी तकलीफ भी नहीं दी जाएगी कि वो खाना खाने के लिए लेटा हुआ था तो उठ जाए, बैठा हुआ था तो खड़ा हो जाए. नहीं, इतनी भी तकलीफ नहीं. जहां जो मौज में आए, जो दिल करे, बस वो उसके सामने हाजिर है. सुभान अल्लाह, क्या शान है जन्नत की. इन जन्नत देयर इज पीस ओनली, देयर इज कंफर्ट ओनली. वहां कोई तकलीफ नहीं है, वहां कोई दुख नहीं है. देयर इज नो हेडेक इन जन्नत, देयर इज नो फीवर इन जन्नत, देयर इज नो टायर्डनेस इन जन्नत. किसी को कोई तकलीफ नहीं, ना जिस्म की ना फिक्र है. यहाँ तो जिस्म हेल्थी भी हो ना तो फिर भी फिक्रें रहती हैं. कल क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, बिल भरने हैं, वो कौंसल का बिल इतना हो गया, उसका इतना हो गया, उससे उधार लिया था वो देना है, बच्चे की फीस भरनी है. फिक्रें हैं ना, चाहे हेल्थी हो, कुछ भी तकलीफ नहीं है. बट यू स्टिल वरी, यू स्टिल अनहैप्पी. But in Jannat, no worry, no sorry, no problem. You don't have to pay any bill. Anything you want, anything you desire comes to you for free. And you have servants every way moving around in Jannat to serve you. Subhanallah. यहाँ एक नौकर रखें कितना पैसा लगता है? काम वाली रखते हैं ना घर में. Now people are getting tired of that because they charging too much money. तो बेचारी जो घर वाली हैं वो भी मुश्किल में आजकल. नौकरानी नहीं मिलती. अब नौकरानी के पैसे कहाँ से दें, महंगी इतनी हो गई. तो और फिर ये जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाते हैं ना, वहाँ की जो हैं बीवियां, वो फिर भाग भाग के वापस साउथ अफ्रीका आना चाहती हैं. इन अमेरिका कहती हैं तो वहाँ काम वाली नहीं मिलती. साउथ अफ्रीका में आदत नहीं थी काम करने की, वहाँ जाके कपड़े भी धोने पड़ रहे हैं, इस्त्री भी करने पड़ रहे हैं, और जनाब खाने भी पकाने पड़ रहे हैं, पोंछा भी लगाना पड़ रहा है. तो मसाइल तो है ना, दुनिया है. वहाँ डॉलर मिल जाएंगे लेकिन और तकलीफें बड़ी हैं.
जन्नत में कोई तकलीफ नहीं है। जन्नत के लिए मेहनत करो ना। अमेरिका के लिए इतनी करते हो, यूरोप के लिए इतनी करते हो, यूके के लिए सर फोड़ देते हो, वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, वहां का पैसा बड़ा है, पाउंड इतना बड़ा है। ये सारे टेम्परेरी, वहां जाके लोग बीमार होके मर जाते हैं। अरे कमाने गया था तो सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। तो जन्नत के लिए मेहनत करो। देखें ये जो कि इतनी राहत है, इतना आराम, ये जन्नत के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। चाहे आप जितना पैसा कमा लो, चाहे आप जितने अमीर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जन्नती खाएंगे पिएंगे, ये तो हर कोई जानता है, एवरीवन नोस। Hazrat Zaid bin Arqam radiallahu ta'ala says that once a non-Muslim came in the beloved court of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, and he said, "O Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, what do you say about Jannatis? Would they eat and drink?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Yes, by the oath of the one in whose hand of power is my life. No doubt, the people of Jannat will drink and eat, and each man will be given the power of 100 men." एक मर्द को कितने मर्दों की ताकत मिलेगी? 100 मर्द। This non-Muslim person said after hearing this, that if he drinks and if he eats, then he has to go and relieve himself. उसको टॉयलेट की जरूरत पड़ेगी ना, जो खाता पीता है। So that's a तकलीफ। तो आप तो कहते हो जन्नत में कोई तकलीफ नहीं, so there's no परेशानी, there's no worry, there's no sorrow, there's no pain, but that's also a taklif to go find a toilet, go there, relieve yourself. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied, when person of Jannat will eat, he will get pasina, perspiration, sweating, and that perspiration will smell better than the musk, and with that pasina his food is digested. So he does not need to go to toilet. तो पसीना निकलने से यानी बदबू भी नहीं है। हम जो रिलीफ करते हैं अपने आप को तो बदबू आती है ना, लेकिन उसके जिस्म से पसीना निकलेगा और पसीने में बदबू भी नहीं होगी, मुश्क से अच्छी खुशबू होगी। सुभान अल्लाह। ये जन्नत में मिलेगा भाई, इधर उधर कहीं नहीं मिलेगा। तो जन्नत के लिए तैयारी करनी चाहिए, इसी के लिए कोशिश करें। असल में कामयाब वही है कि जो जहन्नम से बच गया और जन्नत में चला गया। अभी इस दौरान कुछ डिस्कशंस थी पाकिस्तान में, तो मुझसे यही सवाल किया गया था, हु इज सक्सेसफुल पर्सन? No, it wasn't in Pakistan, it was in Mauritius. It was a TV show, and the question was asked to me, who is successful person in your eyes? I said, the real successful person is that who is saved from Jahannam and he goes into Jannat. इससे बड़ा कामयाब कोई नहीं है। ये पैसे कमा लिए तो इतने मिलियन बना लिए, तो इतने घर बना लिए, तो इतना ये कर लिया। हमारे लोग बेचारे नहीं समझते,
वो सारा मेजरमेंट सक्सेस का इसी के इर्द गिर्द घूमता है, पैसे के। और बड़ा कामयाब हो गया जी, बड़ी तरक्की कर ली। क्या तरक्की कर ली? वो अब तहज्जुद पढ़ने लग गया क्या? क्या उसने 5 वक्त नमाज जमात के साथ तकबीर उला के साथ पढ़ना शुरू कर दी है? ये तरक्की को कैसे मेजर करते हो? और नहीं जी, पहले एक दुकान थी अब 4 हो गई, पहले एक घर था 5 हो गए। अब बेचारों की यही सोच है, पर इसी के सारी जिंदगी इसी के पीछे। अगर उन मुसलमानों के ज़हन में बैठ जाए ना कि असल तरक्की यह है कि मुझे जन्नत मिल जाए, तो फिर नेकियां करेंगे, फिर इबादत करेंगे। कि इधर कंफर्टेबल घर में रहा और मरा तो कब्र में कीड़े इंतजार कर रहे हैं, बिच्छू इंतजार कर रहे हैं, सांप इंतजार कर रहे हैं, उधर जहन्नम से खिड़की खुल गई। इसको कामयाबी कहते हैं। ये 10 घरों का, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का मालिक, उधर उसको कीड़े खा रहे हैं कब्र में। इज दिस द सक्सेस? ये तो सबसे बड़ा फेलियर है। सक्सेस तो वो है ना, इधर महल में से निकले, आगे एक महल इंतजार कर रहा। You come out from a palace and enter another palace. That's a success. और वो पैलेस कहाँ मिलेगा? वो आपको जन्नत में मिलेगा। सुभान अल्लाह। It is mentioned in narrations. Allah subhanahu wa ta'ala will say to the angels, give food to my friends. ये जन्नत में होंगे ना, इनको अल्लाह ताला अपना दोस्त कह के पुकारेगा। फरिश्तों से फरमाएगा, ऑफर हॉस्पिटैलिटी, गिव फूड टू माय फ्रेंड्स, एंड दे विल बी ऑफर्ड डिफरेंट कलरफुल फूड्स। अलग अलग रंगों के ये खाने हमको दिए जाएंगे। नाउ इट्स ए वन डिश है ना, बिरयानी जैसे एक डिश हो गई, कोई सालन हो गया एक डिश हो गई। तो शुरू से आखिर तक उसका एक ही टेस्ट होता है ना, एक देग का एक ही टेस्ट होता है। ऐसा तो नहीं कि इतने हिस्से का ये टेस्ट, उतने हिस्से का वो टेस्ट, उतने हिस्से का वो टेस्ट, ऐसा तो नहीं होता है। बट द फूड ऑफ जन्नत आर डिफरेंट। फॉर एवरी बाइट पर्सन विल गेट डिफरेंट टेस्ट। सुभान अल्लाह। डिश एक ही है, लेकिन हर खाने की लज्जत जुदा है। ये कहाँ मिलेगा? किस रेस्टोरेंट में मिलेगा? दिस यू विल ओनली फाइंड इन जन्नत। सो व्हाई नॉट वर्क फॉर इट? क्या मैं वो उस रेस्टोरेंट में हमारा भी दाखिला हो जाए, जहाँ इस तरह के खाने भी मिले और फ्री भी मिले, बिल भी नहीं आएगा। And when they will finish eat the food, Allah subhanahu wa ta'ala will say, give my friends something to drink, इनको पिलाओ। So they will be given different types of शरबत, मीठे मीठे। यहाँ तो बीमारी हो जाती है ना, शुगर हो जाती है। There's no sugar in जन्नत। यहाँ तो एक टेस्टी रूह अफ़ज़ा का शरबत सामने आता है, दिल करता है पी लो, फिर वो सेहत कहती है, डॉक्टर कहता है, फैमिली कहती है डोंट ड्रिंक, शुगर बढ़ जाएगी। वहाँ ये भी बीमारी नहीं है, यू डोंट हैव दैट प्रॉब्लम। शरबत हर तरह के मौजूद है, जितने चाहो पियो, कोई फिक्र नहीं है कि शुगर हो जाएगी या शुगर बढ़ जाएगी। अल्लाह ताला फरमाएगा, पिलाओ मेरे बंदों। And they will drink that sharbat of jannat, and for every sip they will find a different taste. हर लुकमे पे अलग मजा और हर घूंट पे अलग मजा। अब वो मजा कैसा होगा वो तो
जन्नत में जाकर ही पता चलेगा, उसकी डिस्क्रिप्शन या उसकी कोई मिसाल यहाँ पर हम दे ही नहीं सकते। तो क्या ख्याल है, वो काम करने चाहिए ना। अच्छा, एक बड़ी मजेदार चीज मैंने पढ़ी कि जो जिस शौक के साथ मरेगा ना, वो शौक, अगर शौक सही जायज है तो, क्योंकि वहां नाजायज चीजें तो नहीं हो सकती, he will be given the choice to fulfill your शौक there in Jannah. For example, a person will say, Ya Allah, I want to do agriculture in Jannah. मैं खेती बाड़ी करना चाहता हूँ, मैं फसलें उगाना चाहता हूँ। अब ये फसलें क्यों उगाएगा, इसको क्या जरूरत है, सब कुछ तो मिल रहा है। He is that person who used to love खेती बाड़ी, who used to love to put seed in the ground and then it would grow like a crop. उसको अच्छा लगता था, उसको पसंद था, वो अल्लाह की कुदरत के नज़ारे देखता था कि मैंने बीज को जमीन के अंदर खो दिया, अब मैं ढूंढना भी चाहूं उसके ऊपर से ऐसी मिट्टी की तहें चढ़ गई कि मैं वो बीज ढूंढ भी नहीं सकता, लेकिन मेरे रब ने उसमें से पौधा निकाल दिया, पौधे पे फल लगा, वो खाना बन गया लोगों का, उसको मजा आता था इसमें। There are a lot of kisan farmers, they do hard work and they love it, they are passionate about it, they see the qudrat of Allah subhanahu wa ta'ala in their work, in their function, तो उनको लुत्फ आता। अब ये जन्नती, ये फार्मर था, ये जन्नत में चला गया, इसको शौक चढ़ेगा कि मैं जन्नत में खेती बाड़ी करूं, ऐसे ही ख्याल आएगा। How it would be to plant, some crops in Jannat. You will see suddenly angels are coming from all angles and they're carrying something in their hands, and you will see this way and said, what's going on? They'll say, we have brought seeds for you. तुम्हारे लिए बीज लाए हैं, तुम्हारे दिल ने ख्वाहिश की थी ना खेती बाड़ी करने की, लो बीज लो और उगाओ। And he will take the seeds, the land would be prepared for him automatically, and he will put the seed. As he will put the seed, within seconds it will start growing and will reach the height of mountains. ये बड़ा जबरदस्त ये नुक्ता है। इस पर हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बात लिखी है कि जिस शौक के साथ जो बंदा मरता है, वो शौक पूरा करने का मौका उसको जन्नत में भी मिलता है। जैसे ये खेती बाड़ी करने वाला, इसको शौक था। फरमाते हैं वो लोग जो हजूर की मोहब्बत में मरते हैं, जिनको हजूर की सुन्नतों का शौक होता है, जिनको हजूर की सीरत से प्यार होता है, उनको जन्नत में हर वो सुन्नत अदा करने का मौका मिलेगा जो दुनिया में नहीं कर सके, और हजूर का कुर्ब भी उन्हें जन्नत में मिल जाएगा। तो ऐसे शौक पालो ना। अब शौक पालते हैं लोग, कबूतर उड़ाऊंगा, कबूतर उड़ाना तो फजूल का काम है, ये जन्नत में नहीं मिलेगा। और कोई वो लोगों को शौक होता है फिशिंग का, मछली पकड़ी, फोटो ली, फिर डाल दी, ये हराम है। बहुत सारे लोग करते हैं सिर्फ फोटो लेने के लिए। ओ आई कॉट सच ए बिग फिश। सिर्फ वही शिकार हलाल है
जो अपने खाने के लिए किया जाए, only that hunting is halal, which is done for the purpose of your food. कि भाई मैं घर पे लेके आऊंगा, इसको साफ सुथरा करूंगा, इसको मैं खाऊंगा या खिलाऊंगा या फ्रिज में रख दूंगा, बाद में खाता रहूंगा। अगर ये नीयत नहीं है ना तो फिर शिकार हराम है। अब जिसको इस तरह के शौक दुनिया में थे तो थोड़ी उसको जन्नत में ऐसे मौके मिलेंगे। जन्नत में तो नेक चीजों के मौके मिले, जायज काम जो उनके मौके मिले। अब कोई गैम्बलर अपने गुनाह की सजा पाने के बाद जन्नत में चला भी गया, तब वो कहे नहीं वो दुनिया में तो बड़ा मजा आता था जब मैं गैम्बलिंग करता था, तो यहाँ भी मौका मिल जाए, ना उसको मौका नहीं मिलने वाला। ये गंदी चीज है ना, तो गंदी चीज जन्नत में नहीं होगी। तो अल्लाह ताला हमें जन्नत अता फरमाए। और जन्नत में जाने का एक सबब और भी है ना, बड़ा मशहूर है कि जिसने अल्लाह के घर को बनाया, उसकी खिदमत की, उसको जन्नत में महल मिलेगा, है ना? सुना हुआ हदीसों में भी है। So we finding that the Friday chanda that you give, the donation that you give, उससे ये सारा मस्जिद का काम चलता है। We pay the bills, we pay the salaries, we do so many things. मस्जिद आबाद रहती है, इमाम है, मुअज्जिन है, खादिम है, बिजलियाँ, सारा कुछ है। ये कैसे हो रहा है? The money you give on Friday. Now, recently, I think that shock of giving for the masjid is decreasing. अब ये थोड़ा होता जा रहा है। पहले जुमे में हम लोग 10 से ऊपर 1000 चंदा कर लेते थे, अब आधा हो गया है, इससे भी कम। बंदे उतने ही हैं, लोग उतने ही, तो इसका मतलब आपने कम कर दिया। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे यार। अल्लाह के घर के लिए कम क्यों करना, बढ़ाना चाहिए। उससे बरकत होती है, रोजी में बरकत होती है, आखिरत में जन्नत मिलती है। तो मुझे हमारी मालियात के इस्लामी भाई ने बताया कि भाई कुछ मामला ढीला चल रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना फ्राइडे का चंदा जो आप देते हैं, जो चादर चलती है, उसको बराए मेहरबानी बढ़ा दें। इसका आप ही को फायदा है। ये मौका आपको मिलता है, घर पे आके नॉक करता है, जन्नत ले लो, बरकत ले लो, रहमत ले लो। और हम नहीं कर पाते तो हम मालूम है। सो प्लीज मेक श्योर दैट वी गॉट इनफ फंड्स, all our activities in the masjid and surrounding madrasa, everything runs properly. May Allah bless you. Jazakumullah. Wa ma alayna illa al-balagh al-mubin.